السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ اداکارہ عفت عمر نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کے بیان پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹویٹر پر عفت عمر نے عمران خان کے حالیہ بیان کو شیئر کرتے ہوئے ان پر برہمی کا اظہار کیا۔ عفت عمر نے ٹویٹ میں عمران خان کے الفاظ دہراتے ہوئے لکھا کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاگل خان لکھ کر ایموجی کے ذریعے غصے کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ عمران خان کے بیان کو لے کر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہندوستانی بادشاہ پرتھوی راج کی زندگی پر بننے والی فلم سمراٹ پرتھوی راج کی ریلیز پر عمان اور کویت میں پابندی عائد کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار اور اداکارہ مانوشی چلر کی نئی آنے والی فلم سمراٹ پرتھوی راج عمان اور کویت میں ریلیز نہیں کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق عمان اور کویت میں اس فلم کی ریلیز پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے، اس کی واضح وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی فلم کی ٹیم کی جانب سے اب تک اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چندر پرکاش دیوی کی تحریر اور ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم سے اداکارہ مانوشی چلر بالی ووڈ میں ڈیبیو کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس فلم کا نام پہلے ہی پرتھوی راج تھا، لیکن ٹیم نے 27 مئی کو ٹائٹل تبدیل کر کے اس کا نام سمراٹ پرتھوی راج رکھا۔ فلم کے نام کی تبدیلی کا فیصلہ شری راجپوت کرنی نامی تنظیم کی درخواست کے بعد کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق درخواست میں راجپوت برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ دوسری جانب اکشے کمار اور مانوشی اپنی نئی فلم کی تشہیری سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سمراٹ پرتھوی راج 3 جون کو ریلیز کی جائے گی۔ اس فلم میں اکشے کمار اور مانوشی کے علاوہ سنجے دت اور سونو سود بھی اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا کہ ان کے گینگ ممبر نے پنجابی گلوکار سدھو موسے والے کو قتل کروایا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گینگسٹر لارنس بشنوئی نے سدھو موسے والا کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے دہلی پولیس سے کہا ہے کہ ہاں، میرے گینگ کے رکن نے سدھو موسے والا کو مارا۔ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کہا کہ وکی مڑوکھیرا ان کا بڑا بھائی تھا اور ان کے گینگ نے وکی کی موت کا بدلہ لیا۔ اگرچہ لارنس بشنوئی نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا گینگ پنجابی گلوکار کے قتل میں ملوث تھا، لیکن انہوں نے خود کو اس واقعے سے الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں جیل میں تھا اور اپنا فون بھی استعمال نہیں کر رہا۔ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کہا کہ وہ تہاڑ جیل میں تھے اور انہیں ٹی وی پر نشر ہونے والی خبروں سے سدھو موسے والا کے قتل کا علم ہوا۔ واضح رہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کا نام سدھو موسے والا کے قتل کے سلسلے میں سامنے آیا۔ پنجابی گلوکار کو اتوار 29 مئی کو ضلع مانسا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سدھو موسے والا کے قتل کے ایک دن بعد لارنس بشنوئی نے اپنے وکیل کے ذریعے سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت میں کئی مشہور شخصیات کو گینگسٹرز کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ سپر سٹار سلمان خان، شاہ رخ خان، گلوکار سدھو موسے والا سے لے کر سونو نگم تک ستاروں نے مختلف وجوہات کی بنا پر دھمکیاں ملنے کی شکایات کی تھی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گینگسٹر لارنس بشنوئی نے سلمان خان کو راجستھان میں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، جہاں وہ کالے ہرن کیس میں عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کہا تھا کہ سلمان خان کو یہیں جودھ پور میں مار دیا جائے گا، پھر انہوں نے ہماری اصلی شناخت کے بارے میں پتا چل جائے گا۔ سدھو موسے والا کو 29 مئی 2022 کو بھارتی ریاست پنجاب میں ان کے گاؤں میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں کے انٹرویو میں میکا سنگھ نے بتایا تھا کہ سدھو کو 3 سال قبل جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی۔ اپنی فلم ہیپی نیو ایئر کی ریلیز سے قبل شاہ رخ خان کو انڈر ورلڈ کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جوہو میں پروڈیوسر کریم مورانی کی رہائش گاہ کے باہر 4 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق اس جگہ سے ایک نوٹ ملا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شاہ رخ خان اگلا ہدف ہوں گے۔ بعد ازاں بومن ایرانی اور سونو جو اس فلم کا حصہ تھے ان کو بھی انڈر ورلڈ کی جانب سے دھمکیاں ملی۔ 2013 میں پولیس نے بتایا کہ گلوکار سونو نگم کو مبینہ طور پر انڈر ورلڈ کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ اپنا معاہدہ منسوخ کر دیں اور کسی دوسری کمپنی کے ساتھ سائن اپ کر لیں، جس کا انتخاب ان کے ذریعے کیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈر ورلڈ ڈان روی پجاری نے
गुलकार अरिजीत सिंह को धमकी दी और 5 करोड़ रुपए देने को कहा। उन्होंने गुलकार से ये भी कहा कि वो इनके लिए कॉन्सर्ट्स में मुफ्त परफॉर्म करे, ताकि गुलकार ने किसी किस्म का पुलिस तहफ्फुज़ लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने रवि पुजारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। बॉलीवुड के अदाकार ओम पुरी की अहलिया नंदिता पुरी ने गुलकार कृष्णा कुमार कनातुल मारूफ के मौत का जिम्मेदार मगरबी बंगाल की हुकूमत को करार दिया है। वाज़ेह है कि गुलकार के मंगल की शब जनूबी कलकत्ता में एक कॉलेज फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के बाद दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉलीवुड के साबिक अदाकार ओम पुरी की अहलिया ने उनकी मौत पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें कहा कि कोलकाता हुकूमत ने के को मारा है। यह बात नंदिता ने इस तनाजुर में कही कि जिसके मुताबिक के की मौत के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें के एक तौलिए से मुसलसल अपना चेहरा साफ कर रहे थे और साथ ही वेन्यू में लगे एयर कंडीशनर सिस्टम की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अपने फेसबुक पेज पर नंदिता ने तहरीर किया कि मगरबी बंगाल की हुकूमत को नजरल मंच में लगे रियासती इदारे के नाकिस एयर कंडीशंस पर शर्म आनी चाहिए। 7,000 अफराद की गुंजाइश के हॉल में सिर्फ 5.2 ताकत का एसी जो कि उसे ठंडा रखने में नाकाम रहा। के ने मुसलसल पसीना साफ करते हुए 4 बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं किया गया, जिससे इनकी हालत खराब हुई, जबकि वहाँ कोई पैरामेडिक्स फर्स्ट एड कुछ भी नहीं था और इनकी जान बचाने के इंतहाई अहम लम्हात जाया हो गए। लोक गुलकार शौकत अली मरहूम की बेवा जुमेरात को लाहौर में इंतकाल कर गई। मरहूमा कुछ रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। इनके अहले खाना के मुताबिक गुलकार शौकत अली की बेवा ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जिना अस्पताल में दाखिल थी। मरहूमा की नमाज जनाजा जुमेरात को रात 9 बजे जोहर टाउन में अदा की जाएगी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार राजपाल यादव ने कहा है कि उनके कैरियर के इब्तिदा में फिल्मों के लिए कास्ट करने वाली एजेंसियां इन्हें मुस्तरद कर देती थी। हिंदी फिल्मों में गुज़िश्ता दहाइयों से ज्यादा अरसे से अपनी मुख्तलिफ अंदाज की अदाकारी, बिलखसूस मज़ाहिया अदाकारी के लिए मशहूर 52 साला राजपाल यादव ने एक भारतीय मीडिया इदारे से गुफ्तगू के दौरान बताया कि 90 के अशरे के आखिर में जब वो यूपी से मुंबई आए तो इन्हें खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 2000 में बनने वाली फिल्म जंगल में एक मनफी किरदार अदा करने पर इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उनका कहना है कि आज तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन 22 साल कबल ऐसा कुछ भी नहीं था। हम अपनी तस्वीर लेकर एक से दूसरे ऑफिस जाया करते थे और काम मांगते थे। अक्सर लोग काम देने का वादा तो करते थे, लेकिन काम नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि मुंबई में आने के 1.5 माह बाद तक इन्हें काम नहीं मिला और मैंने अपने दोस्त को बताया कि अब तक कुछ नहीं हुआ। इस पर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता, लेकिन तस्वीर देखकर काम भी नहीं दिया जाता। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बड़े पर्दे पे नजर आने वाले जिब्रान खान अब फिल्म इश्क व शक के सीक्वल से फिल्मी दुनिया में वापसी के लिए तैयार हैं। सन 2001 की सुपर हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान और काजोल के बेटे का किरदार निभाने वाला चाइल्ड आर्टिस्ट जिब्रान खान 2 दहाइयों बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो फिल्म इश्क व शक रिबाउंड की जारी शूटिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। ये फिल्म शाहिद कपूर और अमृता राव की 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म इश्क व शक का सीक्वल है। ताहम जिब्रान खान की फिल्म 2023 में रिलीज होगी और जिब्रान खान इससे बतौर अदाकारी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगे। याद रहे कि जिब्रान खान ने कभी खुशी कभी गम में चाइल्ड आर्टिस्ट क्रिश राय चंद का किरदार अदा किया था, जो राहुल राय, शाहरुख खान और अंजलि शर्मा का बेटा था। शाहरुख खान और काजोल के अलावा वो फरीदा जलाल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर के हमरा भी कई मनाजिर में शामिल थे। बचपन की पहली फिल्म में धमाकेदार एंट्री के बाद उन्हें कई ऑफर्स हुई, ताहम उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 2001 की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 2002 की फिल्म रिश्ते में भी अदाकारी की। जिब्रान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन के नाम से ज्यादा मकबूल है। ये वो किरदार है जो उन्होंने टीवी सीरीज महाभारत में अदा किया था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार कार्तिक आर्यन ने अदाकारा धनानीर मुबीन का दिन खुशगवार बना दिया। पावरी गर्ल के नाम से शोहरत पाने वाली धनानीर मुबीन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये स्क्रीनशॉट अदाकारा की भारतीय अदाकार कार्तिक आर्यन से होने वाली गुफ्तगू है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि कार्तिक आर्यन ने इनसे मैसेजेस पर बात करके इनके दिन को खुशगवार बना दिया है। ख्याल रहे कि भारतीय अदाकार कार्तिक आर्यन धनानीर मुबीन की वायरल वीडियो पारी हो रही
بھی ہے سے کافی متاثر ہیں کہ انہوں نے اس مشہور ڈائلاگ کو اپنی نئی فلم بھول بھلیاں 2 میں بھی شامل کر لیا ہے۔ तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईधी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिले रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। पहाड़ों की दुनिया में नांगा पर्वत सबसे ज़्यादा जालिम और नाकाबिले एतबार पहाड़ है। ये अंदाजे की मामूली सी मामूली गलती को माफ़ नहीं करता। इसके कानून में गलती की छोटी सी छोटी सज़ा मौत है। इसी वजह से इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया गया है, क्योंकि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 31 कोपहमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शायद इसी वजह से नंगा पर्वत को सर करने वाले कोपहमाओं की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 28% है। कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकरम के दूसरे बड़ी चोटियों की तरह इसे भी मतलूम मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता है। इसके कुर्बो जवार में आबाद लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नज़र आ रहा होता है तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं।
मकामी आबादी का अकीदा है कि नांगा पर्वत की चोटी परियों की मलका की रिहाइश का है। दास्तानों में आया है कि वो एक ऐसे बर्फानी किले में रहती हैं जो शफाफ और तवीज़ बर्फ का बना हुआ है। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं, उनमें शैतानी रूहें, देव हैकन मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमानवी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इस पर यकीन रखते हैं। नांगा पर्वत कोई एक चोटी नहीं, बल्कि ये चोटियों का मजमुआ है। इस चोटी की ऊंचाई 8,126 मीटर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर चोटियों में 9वें नंबर पर है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसको सर करना आसान नहीं है। ये एक ख़तरनाक चोटी है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद चोटियाँ, पहाड़ें और चट्टानें उमूरी और पथरीली हैं, जिन पर बर्फ़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठहरता और मौसम सरमा में भी ये अपनी असली हालत में ही रहता है, यानी पहाड़ नंगा रहता है, तो इसी वजह से इसको नांगा पर्वत कहते हैं। नांगा पर्वत को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी कोपहमा एल्बर्ट फेडरिक मैडलर ने की। उन्हें उस वक्त के कोपहमाओं का लेजेंड कहा जाता था। जंगी अजीम अव्वल और दोम के दरमियान 5 टीमें जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, नांगा पर्वत सर करने आईं और सफ़े अव्वल के मारूफ 10 जर्मन कोपहमा और 15 शर्पा इस अरसे में नांगा पर्वत की खूंखारी का शिकार बन गए। 1934 में जर्मनी का मशहूर कोपहमा विली मैरिकल, जो 1932 में नांगा पर्वत पर नाकाम हो चुका था, दोबारा नांगा पर्वत सर करने आया। तकरीबन 7,500 की बुलंदी पर पहुंच चुका था और बिल्कुल चोटी के करीब था, मगर उसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई और इसी दौरान विली और उनके 3 साथी जान की बाजी हार गए। विलबर्गर की मौत ने नांगा पर्वत को सर करने में एक नया मोड़ दे दिया और इसके सौतेले भाई कार्ल ने नांगा पर्वत से इंतकाम लेने का सोचा और माहिर को पहमाओं की टीम तश्कील दी और हर दूसरे साल वो नांगा पर्वत को सर करने के लिए पहुंचा होता था और आखिरकार उसी की क़यादत में नांगा पर्वत को सर कर दिया गया। रवाम बर्स कतर में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट की फैक्ट्री में तैयार कर लिया गया। खलीजी रियासत में होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल कॉल मुतारफ करवाया गया है। सियालकोट की इस फैक्ट्री के CEO का कहना है कि फुटबॉल जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक ऑटोमेटिक मशीनरी से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल नवंबर में कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगा। उन्होंने ये भी बताया कि फुटबॉल में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला मटीरियल रिसाइकल है जो माहौल दोस्त होगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शादाब खान ने हसन अली की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर पर इनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। हसन अली ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने गोल्डन रंग की घड़ी पहनी हुई है। शादाब खान ने इनकी घड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि घड़ी अच्छी है, अब हाथ नीचे कर लो। ख्याल रहे कि कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरीन दोस्त समझे जाने वाले हसन अली और शादाब खान सोशल मीडिया पर एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं।
قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کا کہنا ہے کہ پاکستان واپس آ کر مزہ آ رہا ہے، موسم بھی تبدیل ہے۔ شاداب خان نے کہا کہ انجری کے بعد واپسی مشکل ہوتی ہے، مجھے جلد انجری کی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاؤنٹی میں کنڈیشنز مشکل تھی، کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ دونوں ورلڈ کپ کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اس سال T20 ورلڈ کپ بھی ہے، کوشش ہوگی کہ پچھلے سال سے مزید اچھا کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زاہد محمود اچھے بالر ہیں، ان سے مقابلہ ہونا اچھی بات ہے۔ نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ سے قبل سیریز ہوئی تو فائدہ ہوگا۔ شاداب خان نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز اچھی ہوگی، جس کی تیاری ہو رہی ہے، جس نمبر پر بھی موقع ملتا ہے اس کے مطابق کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی کا کہنا تھا کہ انگلینڈ میں کھیل کر فائدہ ہوا، عادل رشید کے ساتھ کام کیا، مزید بہتری لانے کا موقع ملے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔